help others as well as ask them for help कि तुम्हारा कोड easily maintain भी होगा and people can easily contribute into your code as well. इसी चीज में सबसे ज्यादा काम आता है GitHub का, to share the code as well as to maintain your code. And इसमें एक अच्छी चीज और है कि if you have to share your code to 1000 users or 1 million users, GitHub पे there is no restriction कि तुम एक बार में you can just share to everyone you just want to share. There is no kind of restriction, right? Moving on, ये तो I guess जिसको GitHub नहीं पता उन लोगों को समझ में आ गया, right? Second thing कि हमें GitHub क्यों यूज करना चाहिए, that is the major question कि हम क्यों यूज करें GitHub को. Second thing, okay, so हम क्यों यूज करें. First thing is GitHub is a thing which is used by every tech company worldwide. अगर कोई company है which is doing something in related to tech, anything, it will definitely use GitHub. Like GitHub is inevitable for a tech company. Second thing, that is it's a production level thing. What do I mean by production level? Production level का क्या मतलब है? वो एक ऐसी चीज है जो कंपनी फॉलो करती है. Like अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है which you like coding जो तुम अपने सिस्टम पे करते हो, that may or may not be similar to a company in which you are applying, and they have different standards which you have to follow while you are coding in their database or their anything system. This इस चीज को, but ये GitHub में ऐसा कुछ नहीं होता. GitHub is same for everyone and it's a thing which is used on a production level, so you must have it. अगर तुम्हें like GitHub नहीं आता, so I don't think you are fit to work in a tech company. And एक चीज और जो कि अगर तुम में से थोड़ा बहुत टेक एक्सप्लोर करा है वो जानता होगा कि GitHub की आई गेस इन टुडेज वर्ल्ड तुमने एक लाइन सुनी होगी कि GitHub is your resume. If you are a developer, if you are an engineer, your GitHub is your resume, right? You have to maintain it. Instead of shortlisting you on the basis of your resume, most companies shortlist you beforehand, before calling for the interview round on your GitHub. If your GitHub is not adequate or it is not up to the mark, they won't hire you. So that was just a small summary. Why should we use GitHub and what is GitHub? Proceeding to what is open source and how does it connect to GitHub, I would like to hand over the mic to Parth. मीट को या तो ओपन मीट को ओपन कर दो, दैट वुड बी बेटर.
मैं इसको आई गेस कोई बंदा डाउट पूछ रहा है एटीएस का कि आई गेस वो मैं बता देता हूँ कि एटीएस पहले कंपनी यूज करती थी टू शॉर्टलिस्ट द रेज्यूमे ऑफ द कैंडिडेट्स, बट अब तो वो भी बहुत पुराना हो गया सिस्टम। एटीएस एटीएस स्कोर अब कोई नहीं देता कंपनी, अब तो दे व्हाट करंट सिनेरियो इज दे सर्च फॉर specific keywords like open source or any keyword like backend. If you're applying as a backend engineer, they would search for backend or any specific set of keywords for a particular role. This is how companies shortlist resumes, right? I guess you doubt, I guess.
Linus Travers, I guess, right? Linus का founder ना?
थैंक यू करुण। एंड आई गेस अब आप लोगों को काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा, और आई गेस सबको पता चल गया होगा कि ओपन सोर्स क्या है, कैसे गिटहब की कंट्रीब्यूशन उसे कैसे, क्या मतलब फ्लो क्या है। और एक चीज जो लाइक वी आर जस्ट रैपिंग द मीटअप, एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आई गेस तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ दिख रही है, ठीक है। सो करुण और मैंने एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर करी थी तुम लोगों के लिए, हम लोग तुम लोगों को दे देंगे। अ, ये वो कोहोर्ट्स और फेलोशिप्स को हमने उनको जस्ट बेसिकली लिस्ट आउट कर दिया है, जो जिनका स्टाइपेंड होता है, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड इन कुछ में से कुछ का स्टाइपेंड है, कुछ का नहीं है। एंड कहीं ना कहीं नॉट डायरेक्टली इन ओपन सोर्स, बट कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेंगे। सो मैं सब तो लाइक देयर आर मेनी कोहोर्ट्स एंड फेलोशिप, सो मैं सबको एक एक करके तो नहीं बता सकता, बट मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एंड वी आर जस्ट रैपिंग इट अप। सो एक MLH फेलोशिप है। दिस इज अ वेरी गुड फेलोशिप, और ये Web3 में भी नहीं, ये नॉर्मल Web2 में भी और साइबर सिक्योरिटी में भी आई गेस इसकी फेलोशिप एग्जिस्ट करती है एज फार एज आई रिमेंबर। और इसका स्टाइपेंड आई गेस $1500 के अराउंड रहता है। दिस इज अ वेरी गुड फेलोशिप इंडीड। और इसका तो मैंने मतलब सुना है, जिसके पास ये टैग होता है, मतलब जैसे जीसॉक का टैग है जो कि करुण सर के पास है, या फिर MLH का टैग जो होता है, इट इज वेरी वैल्यूएबल। कि मतलब दैट डज इंडिकेट कि तुम प्रोडक्शन लेवल काम कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फेलोशिप है। सो लाइक इफ यू फील लाइक यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर इट। और एक टर्बिन 3, हाँ चलिए भाई, हाँ ये वो फेलोशिप है जो मैं कर रहा हूँ। सोलाना डेवलपमेंट की, अगर कोई बंदा जिसको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो वो समझ जाएगा सोलाना क्या है। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस फेलोशिप इज कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। एक चीज तो ये मुझे सिखाएगी कि तुम कोई कोहोर्ट या कोई भी फेलोशिप में कोई भी चीज हो गई, जैसे AI का कोई कुछ भी हो गया, या बैकएंड का कुछ भी हो गया, कोई भी स्किल हो गया, वो तुम्हें सिखाएगा। दूसरी चीज इस फेलोशिप का कि द मेंटेनर्स और द ऑर्गेनाइजर्स, जो कि बंदा हमें सिखाता है, उस बंदे ने एक बात बोली थी मुझसे कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं हमारे कोहोर्ट के टर्बिन 3 के, जब भी कोई कंपनी हमारे पास आती है कि हमें एक सोलाना डेव हायर करना है, तो ये अपने कोहोर्ट के टॉप परफॉर्मर्स को एज अ रेफरल दे देते हैं। सो दैट्स हाउ द थिंग केम कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, राइट? यू माइट हैव हर्ड दिस फैक्ट। ऐसे ही कनेक्शन बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस फेलोशिप्स और कोहोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारा कनेक्शन भी बनता जाता है, तुम चीजें भी सीखते जाते हो, एंड तुम्हारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज भी खुलते जाते हैं। कि कहीं ना कहीं इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट लिमिटेड टू कि तुम्हें कंपनी का फॉर्म आएगा उसी पे अप्लाई करोगे। तुम इनके थ्रू भी इनडायरेक्टली, देयर आर पोर्टल इनडायरेक्टली कि तुम इनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। यूनिसैप, आई गेस मेनी ऑफ यू हैव heard it. And coming to AI cohorts and Anthropic Claude Corps, this is one of the best, I would say, the cohort for AI. And as you can see, the stipend is $85K per year, तो मतलब 80 लाख रुपए के आसपास साल का, if you got selected by the way. I guess obviously जितना वो पैसा दे रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी उतना ही टफ होगा for sure. एंड पोलरिस फेलोशिप, आई गेस इसका तो आई गेस आप लोगों ने काफी देखा होगा, हमारे कॉलेज से भी काफी लोगों ने अप्लाई करा था। एंड इस स्टाइपेंड का है 6 लाख पर मंथ। सो या इट्स अ वेरी गुड फेलोशिप। दिस अगेन, ट्राई AI Saturdays, in which I am a fellow. DeepMind, Google DeepMind के थ्रू है। इसका एज सच कोई स्टाइपेंड नहीं है, बट द थिंग इज दे आर प्रोवाइडिंग मी द रिसोर्सेज फॉर लर्निंग AI ML एंड गेटिंग डीप इनटू LLMs। एंड इनके रिसोर्सेज काफी अच्छे हैं, मतलब मैंने काफी लोगों के रिसोर्सेज देखे, and they are providing decent set of resources, right? And as you can see, cloud and infra के भी हम पे course, and there are some other technical fellowships as well. हम इसको तुम लोगों के साथ obviously share कर देंगे ग्रुप पे। and wrapping this up, like मैं अपनी stop sharing, that's it, that was the talk. and एक छोटी सी लास्ट वाली बात जो मैं बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल की मुझे और करुण को, आई गेस हम दोनों को एक बंदा मिला था ट्विटर पे। एंड वो बंदा अभी आई गेस 4th ईयर में आया, 3rd ईयर में आया, मुझे याद नहीं। वो बंदा ओपन सोर्स ही करा, उससे मतलब आई गेस 2 साल या 3 साल ओपन सोर्स करा, एंड ही गॉट अ जॉब ऑफ $50K पर ईयर, एंड दैट टू रिमोट जॉब। मतलब तुम्हें साल का 50 लाख रुपए मिलेगा घर पे बैठ के काम करने का, एंड दैट टू विद 5 days वर्क। अभी क्योंकि US है तो उसमें उनका वर्क एनवायरमेंट कल्चर काफी आसान होता है, राइट? सो हमने लाइक करुण ने भी बहुत बार बताया, जो कि मैं बता रहा हूँ, एट द एंड व्हाट द बॉटम लाइन इज, ओपन सोर्स से इफ यू डिड इट राइट, यू कैन जस्ट go over anything, you can just become anything, right? So that's it, that's my conclusion, and
that's it, the session is over, right? And अगर आप लोगों के कोई doubts हैं, so you can just ask me or Karun. We would be happy to take over all your doubts, right? Thank you. Sir, I have a question. So, like, how can we start contributing in open source? Like you have mentioned कि उसके perks क्या है सब क्या है, but हमें start कैसे करना है? And also आपने starting में mention करा था DevOps. So वो क्या चीज होती है? एक बार दो doubts. ओके एंड एक डाउट और ही बंदे ने किसी ने चैट्स में बोला है कि सर विद दिस ओपन सोर्स कंपनी डज दे चेक आई गेस
यही बोलना चाह रहा है वो कि डज दे प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्ट्रीब्यूशंस ओनली और डज दे चेक कैट सीजी एक्सेट्रा। भाई ओपन सोर्स की जो कंपनी होती है उन्हें तुम्हारी कैट सीजी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता, बस तो तुम्हारा गिटहब और तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह चेक करती है, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा ये डाउट था कि जैसे कि लाइक मैं GSSOC में पार्ट लिया था, गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में। तो लाइक जैसे कि मेंटोर ने मैंने लाइक एक फीचर उनको सजेस्ट किया था, तो उन्होंने मतलब मान लिया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, मैंने उनका सारा काम कर दिया था। बट एट द एंड उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, और ना लाइक मैंने सारा काम कर दिया, उनको अच्छा भी लगा, एक आध मेंटर ने अप्रूव भी कर दिया, बट वो मेन ब्रांच में मर्ज नहीं किया, और लाइक उसको काफी टाइम हो गया। तो सर ये काफी नॉर्मल चीज है या फिर मतलब ये रेयर केस ही होता है? जिसका भी हो गया वो लाइक यू आर फ्री टू लीव, जिसके डाउट्स नहीं है वो जा सकता है। वी आर जस्ट आई गेस करुण सेशन एंड कर देना। ठीक है, बाय गाइस, थैंक यू।